نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ حمد و صلات کے بعد بزرگ و دوستو، جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے پیارے محبوب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کو بیان فرمایا ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف پڑھنا یہ بندہ مومن کے لیے ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ حقیقت پوچھئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں خیر امت فرمایا ہے وہ اسی درود شریف کی برکت سے فرمایا ہے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر تقریباً 25-26 انبیاء کا ذکر کیا ہے اور مختلف احکامات کا ذکر فرمایا ہے، لیکن کسی جگہ پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ یہ کام کرو کہ میں بھی یہ کام کرتا ہوں۔ دیکھیے، آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم دیا تو رب تبارک و تعالیٰ اس کام میں شریک نہیں ہوا۔ یہ نہیں کہا کہ اے فرشتو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو کہ میں بھی سجدہ کرتا ہوں۔ بندہ مومن کو نماز، زکوٰۃ، حج، دیگر جتنے بھی ارکان ہیں ان سب کا حکم دیا گیا، لیکن کسی بھی مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ لوگوں نماز پڑھو میں بھی نماز پڑھتا ہوں، زکوٰۃ دو میں بھی زکوٰۃ دیتا ہوں، حج کرو میں بھی حج کرتا ہوں۔ لیکن جب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبوبیت کی باری آتی ہے تو رب کریم کا انداز ہی بدل جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حکم بندوں کو بعد میں دیتا ہے، مقرب فرشتوں کو بعد میں کہتا ہے، بلکہ اپنے لیے سب سے پہلے یہ فرماتا ہے بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی غیب دان پر۔ یعنی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے اتنے محبوب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عظمت و شان کی نسبت خود پہلے اپنی طرف کرتا ہے، پھر فرشتوں اور پھر بندہ مومنین کو حکم دیتا ہے۔ تو بندہ مومن کے لیے اس سے بڑا اور کیا اعزاز ہوگا کہ اس کام میں شریک ہے جو رب کائنات کر رہا ہے۔ درود شریف کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قرب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی سب سے بڑی کنجی ہے اور سب وظیفوں سے بڑا وظیفہ ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے گا۔ تو بزرگوں دوستوں، میں بھی اسی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے درود شریف کی ایک فضیلت اس کی تشریح کے ساتھ بیان کرنے والا ہوں۔ جو میں حدیث مبارکہ آپ لوگوں کو سنانے والا ہوں وہ حدیث کی ان کتب میں ملتی ہے، یعنی سنن ابو داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، صحیح ابن حبان، مستدرک حاکم اور مسند امام احمد۔ ان تمام کتابوں کے اندر یہ حدیث مبارکہ حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے صحابہ، جو تمہارے جمعہ کا دن ہے یہ تمام دنوں سے افضل دن ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعہ کے دن کو سب سے افضل دن قرار دیا۔ مشکات کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے، اس میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کو مسلمانوں کے لیے عید بنا کر نازل کیا۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ جو جمعہ کا دن ہے یہ مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے عید کا دن ہے۔ پھر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے لوگو، اس دن مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھا کرو۔ آگے ان کی وجوہات بیان فرمائی، کیونکہ یہ وہ مبارک دن ہے جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا جسد اقدس تیار کیا۔ یہی وہ مبارک دن ہے جس دن آدم علیہ السلام کے جسم اطہر کے اندر روح ڈالی گئی، اور یہی وہ مبارک دن ہے جس دن قیامت قائم ہوگی۔ یہ ساری باتیں بیان کرتے کرتے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد ارشاد فرمایا صحابہ، تم مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود شریف پڑھنا ایک روایت کے اندر آتا ہے مجھے پہنچا دیا جاتا ہے۔ یعنی وہ حدیث مبارکہ کچھ اس طرح سے ہے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جب بھی مجھ پر کوئی درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کر دیا ہے میری قبر انور پر، وہ درود شریف
लेकर मेरे पास आता है और अर्ज करता है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फला बंदा जो फला बंदे का बेटा है उसने आप पर दुरूद शरीफ पढ़ा है, तो उसे आपकी बारगाह में पेश किया जाता है। यानी कितने खुश नसीब वो लोग हैं जो दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, क्योंकि जब भी आप दुरूद शरीफ पढ़ेंगे आपका और आपके बाप का नाम करीम आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज किया जाएगा। मिसाल के तौर पर ये फ़हीम साहब मेरे दोस्त हैं, ये अगर दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो फरिश्ता जाकर ऐसे कहेगा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़हीम इब्ने फैज़ ने दुरूद शरीफ पढ़ा है, वो आपकी बारगाह में पेश किया जाता है। इससे बड़ी और क्या खुशबख्ती होगी। और एक दूसरी रवायत के अंदर आता है, करीम आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ऐ लोगों मैं तुम्हारा दुरूद शरीफ पढ़ना खुद सुनता हूँ। जब भी कोई दुरूद शरीफ पढ़ता है वो मैं खुद सुनता हूँ। इन दोनों हदीसों में कोई टकराव नहीं है। मुहद्दिसीन ने इसकी मुख्तलिफ तत्बीकात बयान फरमाई हैं। एक सादी सी तत्बीक अर्ज करता हूँ। जो लोग एक आम रूटीन में दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने जो फरिश्ता मुकर्रर किया है वो दुरूद शरीफ लेकर करीम आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज कर देता है। जो इश्क व मोहब्बत से पढ़ते हैं करीम आका अलैहिस्सलाम खुद सुनते हैं। तो सहाबा बड़े साहिब बसीरत लोग थे। जब उन्होंने ये जुमला सुना कि करीम आका अलैहिस्सलाम फरमाते मैं तुम्हारा दुरूद शरीफ पढ़ना सुनूंगा, दुनिया के किसी भी कोने से तुम दुरूद शरीफ पढ़ो, तो वो बड़े साहिब बसीरत लोग थे। बुजुर्गों दोस्तों, करीम आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इत्तकू फिरासतल मुमिनी फइन्नहु यंजुरु मिन नूरिल्लाह, कि ऐ लोगों मोमन की फिरासत से बचो कि वो अल्लाह के नूर से देखता है। सहाबा तो मोमनों के सरदार हैं, ईमान के आला दर्जे पर फाइज थे, उनकी फिरासत का क्या कहना। फिरासत का मतलब ये है हाल में रहते हुए मुस्तकबिल को जान लेना। वो इश्क के बंदे थे, उन्हें जो करीम आका अलैहिस्सलाम हुक्म करते थे आप फौरन दिलो जान से मान लेते थे। एक कुर्बान जाए सहाबा ने हमारे लिए भी आसानियां पैदा फरमा दी। उन्होंने फौरन अर्ज कर दिया कि यार कुछ लोग शायद ऐसे आ जाए जो करीम आका अलैहिस्सलाम की बात को मानने की बजाय उसकी दूसरी साइड के रुख पेश करना शुरू कर दे। उन्होंने अर्ज किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुलना बादा वफाती का, क्या उस वक्त भी आप सुनेंगे कि जब आप इस दुनिया से रहलत फरमा जाएंगे, जब आपका जिस्म अतहर जो है कब्र के अंदर मट्टी के साथ मिल जाएगा। तो करीम आका अलैहिस्सलाम ने बड़ा कमाल का जवाब इरशाद फरमाया। फरमाते इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अन ताकुल अजसादल अंबिया'i व नबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़ु। ऐ लोगों, अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन पर यह हराम कर दिया है कि वो अंबिया के जिस्म को खाएं। अल्लाह के नबी तो जिंदा है, उन्हें रिस्क दिया जाता है। कितने खुश नसीब है वो लोग जो करीम आका अलैहिस्सलाम पर दुरूद पढ़ते हैं और करीम आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश किया जाता है। इसलिए बुजुर्गों दोस्तों, जब भी आप दुरूद शरीफ पढ़ो तो ये एतिकाद रख कर पढ़ो कि हम यहाँ पढ़ रहे हैं और मदीने में हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा दुरूद शरीफ सुन रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है वो हमें इसको मोहब्बत से पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। और इस हदीस मुबारका से ये बात भी समझ आती है कि करीम आका अलैहिस्सलाम जो है वो अपनी कब्र अनवर के अंदर रूहानी या मुनामी तौर पर जिंदा नहीं बल्कि जिस्मानी तौर पर जिंदा है, हकीकी जिंदगी के साथ। दीगर हदीसों के अंदर आता है कि करीम आका अलैहिस्सलाम फरमाते आलम बिया अहयाउन फी कबूरिहिम युसल्लून। अल्लामा सयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने एक किताब इस पर मुस्तकिल लिख दिया है, जिसके अंदर ये साबित किया है कि अंबिया कराम जो है वो अपनी कब्रों के अंदर जिंदा होते हैं और इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र अनवर के अंदर जिंदा है। ये अहले सुन्नत के एतकादात में से एक एतकाद है जो कुरान और सुन्नत से भरपूर दलाइल से सजा हुआ है। और दूसरी बात यह भी मालूम हुई कि बुजुर्गों दोस्तों, करीम आका अलैहिस्सलाम की अज़मत व शान बयान करने से इस्लाम, तौहीद, ईमान उजागर होता है। अगर इसके बगैर कोई बंदा करीम आका अलैहिस्सलाम की अज़मत व शान बयान करने के बगैर तौहीद की बात कर रहा है, इस्लाम की बात कर रहा है, तो समझ लीजिए कि वो बिल्कुल एक बगैर रूह के जिस्म को तुम्हें दिखा रहा है। करीम आका अलैहिस्सलाम की अज़मत व शान बयान करना ये दीन इस्लाम की रूह है, ये तौहीद की जान है। मैं आपको एक मिसाल से बात समझाता हूँ।
کہ आप खुद फैसला कर पाएंगे कि जो बंदा करीम आका अलैहिस्सलाम की अज़मत व शान से नज़र कतरा रहा है या उसमें डंडी मार रहा है, तो वो हकीकत में इस्लाम को बदनाम कर रहा है, इस्लाम बयान नहीं कर रहा, तौहीद के नाम पर धोखा दे रहा है, तौहीद रहमानी को वो उजागर नहीं कर रहा। देखिए, एक जगह पर चार बंदे बैठ जाते हैं, एक यहूदी, एक ईसाई, एक हिंदू और एक वो बंदा जो करीम आका अलैहिस्सलाम की अज़मत व शानों से दूर रहने वाला है, बयान करने से कतराने वाला है। तो वहाँ गुफ्तगू करते हैं। यहूदी कहता है, ए लोगो, देखो मेरे नबी को अल्लाह तबारक व तआला ने कितनी शान अता फरमाई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को वो पत्थर पर असा मारते थे तो अल्लाह तबारक व तआला पानी के चश्मे जारी कर देता। बुजुर्गों, दोस्तों, ये बात याद रखें कि अंबिया बड़ी शानों वाले होते हैं। नबी होता ही वो है जो अज़मत व शानों का मंबर हो। अज़मत व शान जचती उन पर है, सिर्फ वो अल्लाह के सफ़ीर हैं, वो अल्लाह वाले हैं, हकीकत में अल्लाह वाले वो हैं। तो बेशक अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को जो ये शान अता फरमाई वो बहुत बड़ी शान थी। ईसाई कहे, देखो लोगो, मेरे नबी को अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी शान अता फरमाई, वो मुर्दे जिंदा कर दिया करते थे। बेशक ईसा अलैहिस्सलाम ऐसे ही थे। अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें ये ताकत अता फरमाई थी कि वो मुर्दों को जिंदा करके कलमा पढ़ा लेते थे। एक हिंदू बोले कि मेरे भगवान की बड़ी शान है, उसने इतना बड़ा तीर कमान तोड़ दिया। और वो आदमी जो अज़मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही मानों में बयान नहीं कर पाता, उससे कन्नी कतराता है, तो वो कहे, यार मेरे नबी की तो कोई शान नहीं, मेरे नबी को तो दीवार के पीछे का इल्म नहीं, वो तो अपनी बेटी फातिमा को बख्शवा नहीं सकते, अपने बेटे इमाम हुसैन का करबला के मैदान में कोई उनकी मदद ना कर सके। तो मुझे बताइए, उसने इस्लाम की तबलीग की है, तौहीद की और तौहीद रहमानी को उजागर किया है या बदनाम किया है? आप खुद फैसला कर लीजिए। जब वो बंदा ये बात करेगा तो यहूदी कहेगा, ए अल्लाह के बंदे, तू यहूदी हो जा कि तेरे नबी की कोई शान ही नहीं है, मेरा नबी तो बड़ी शानों वाला है। ईसाई कहेगा, तू ईसाई हो जा कि तेरे नबी को कोई शान नहीं दी, अल्लाह ने मेरे नबी को बड़ी शान अता की है। हिंदू कहेगा, तू हिंदू बन जा। तो हकीकत में उसने इस्लाम को बदनाम किया है। और इस्लाम बदनाम किस वजह से हुआ कि उसने अज़मत मुस्तफ़ा को सही मानों में बयान नहीं फरमाया। वो दुरूद शरीफ की इस आयत को समझ नहीं पाया कि जो अल्लाह तबारक व तआला का महबूब होगा वो तो होगा ही शानों वाला। और आप ये भी एक बात समझें कि जो चीज़ किसी चीज़ की आप तारीफ करते हैं तो हकीकत में वो बनाने वाले की तारीफ होती है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि यार ये दीवार बड़ी खूबसूरत बनाई गई है, तो इसका मतलब है मैं मिस्त्री की तारीफ कर रहा हूँ। यार ये बुक बड़ी अच्छी प्रिंट हुई है, तो मेरा कहने का मतलब यह है जो चलाने वाला है प्रिंटर मशीन वो बड़ा अच्छा कारीगर है। यानी जब भी आप किसी चीज़ की तारीफ करते हैं हकीकत में वो बनाने वाले की होती है। वो बंदा जिसने ये कहा कि मेरे नबी की अज़मत व शान नहीं, हकीकत में उसने अल्लाह तबारक व तआला की अज़मत व शान को लोगों की नज़रों से दूर कर दिया है। क्योंकि लोग कहेंगे, यार जिसका महबूब ऐसा है बगैर शानों वाला, वो अल्लाह भी कैसी बेशानों वाला होगा। जो बंदा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत व शान बयान फरमाएगा, तज़ीम व तकरीम के चर्चे करेगा, तो वो हकीकत में अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात व सिफ़ात तौहीद को सही मानों में बयान करेगा। लोग कहेंगे, यार जिसका महबूब इतनी शानों वाला है वो खुदा कितनी शानों वाला होगा। हाँ, कोई बंदा सही उल अकीदा, बुजुर्गों की सोहबत में बैठने वाला, हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दर से दीन को समझने वाला, दाता साहब अली हजवेरी से मोहब्बत करने वाला, पीर मेहर अली शाह साहब के आस्थाने मुक़द्दसा पर जाने वाला, इमाम आज़म अबू हनीफा की मोहब्बत का दम भरने वाला बैठा हो, तो फिर वो इन सब को जवाब देगा। वो भी आप एक एक करके जवाब सुने। यहूदी से कहा जाएगा, ऐ यहूदी, बेशक
موسیٰ علیہ السلام کی یہ بڑی شان تھی کہ وہ پتھر پر عصا مارتے تھے تو پانی کے چشمے جاری کر دیتے تھے، بڑی شان تھی۔ لیکن بزرگوں دوستو یہ ایک بات یاد رکھیں کہ پتھر جو ہوتے وہاں سے چشمے آبشاریں نکلتی ہیں، پانی بہتا ہی بہتا ہے۔ اس سے بڑا کمال یہ ہے کہ جس گوشت اور خون سے پانی کے چشمے جاری کرتے، یہ اس سے بڑا کمال ہے۔ دیکھیے غزوہ تبوک کا مقام ہے، صحابہ نے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس پینے کے لیے پانی نہیں ہے، جانوروں کو پلانے کے لیے پانی نہیں ہے، وضو کرنے کے لیے پانی نہیں ہے۔ وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.